Hello my dear friends, I hope you guys are doing good. Today we are going to start the second lecture of acids, bases and salts. In the previous video we have studied about these three topics, acid, bases and salts, in a very precise, very brief manner. We have studied their definitions and we have also studied the indicators in detail. Now today we are going to study acids in detail. So now let us start the lecture with the topic types of acids. Types of acids. Okay, in the previous video we have studied the definition of acid and I believe that it is clear to you guys. So on the basis of their occurrence, acids can be divided in two types. The first one is organic and the second one is mineral acid. Mineral acids. Mineral acids are also known as inorganic acids. Inorganic acids. Clear hai? Now what is an organic acid? Organic acids are those which are present in plants and animals. ये कहाँ पाए जाते हैं? Plant and animals में पाए जाते हैं. In other words, you can also define it as those acids which are present in living beings are called organic acids. Mineral acids कहाँ पाए जाते हैं? Mineral acids are prepared. These acids are prepared from the minerals present on the earth. From the minerals present on earth. यानी कि since this is prepared, so these acids are artificial. Clear है? And since these acids are present in plant and animals, so these are natural. इन्हें लैब में नहीं बनाया गया है. मिनरल एसिड्स को लैब में प्रिपेयर किया जाता है. क्लियर है? So now let's see some of the examples and we will also study that where these mineral acids are found. Okay, so let's see some of the examples of organic acids. So friends, these are some of the examples of organic acid. Acetic acid. First one is acetic acid. ये कहाँ पाया जाता है? विनेगर में. Acetic acid is found in vinegar. विनेगर घर में यूज किया जाता है. ओके, एज ए फूड इंग्रेडिएंट. सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? लेमन्स में, सिट्रस फ्रूट्स में. लेमन्स एंड ऑरेंजेस एज वेल. ऑरेंजेस में भी पाया जाता है. लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है कर्ड में, दही में. टार्टेरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? इमली में, टेमारिंड. एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन unripe grapes. क्लियर है? यहां तक. ऑक्जेलिक एसिड कहां पाया जाता है? टमाटर में. एंड फॉर्मिक एसिड कहां पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है एंट स्टिंग. जब चींटी काट लेती है तो जलन होती है ना. सो दिस इज ड्यू टू दिस एसिड. नाउ फ्रेंड्स, लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, H2SO3, sulfurous acid. So these are some of the examples of mineral acid. These are the examples of organic acid. I hope यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी. Now let's see another criteria of classification of acids. Okay, we are still studying about the types of acid, but the classification criteria is different now. So on the basis of degree of ionization, I know it's a new term for you guys. Don't worry, we will study about this
in a bit of moment. On the basis of degree of ionization, acids can be divided into two types. Okay, just try to remember these things. The first one is strong acid. Second one is weak acid. क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब ना समझते हैं कि ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है. डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस पर बात करने वाले हैं. सो व्हाइल स्टडिंग द डेफिनेशन ऑफ द एसिड, मैंने आपको थर्ड पॉइंट क्या बताया था, दैट एसिड्स प्रोड्यूस H+ एक्वस आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, और ये जो एसिड है ये कैसे प्रोड्यूस कर रहा है. लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं. HCl जो है उसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया एंड देन इट विल डिसोसिएट इनटू H+ and it will be aqueous as also and Cl minus aqueous. So the process जो है ये टूटना है, जो HCl जो टूट रहा है इसके आयनिक फॉर्म में H+ एंड Cl माइनस के फॉर्म में, ये कहलाता है आयोनाइजेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन. आसान भाषा में इसे दूसरे टर्म में कैसे समझेंगे, डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स इनटू इट्स आयनिक फॉर्म. अब ये डिग्री का क्या मतलब है, that how much amount of acid is being dissociated into its ionic form, ये कहलाता है degree of ionization. Clear है? So on the basis of degree of ionization, acids can be of two types, strong acid, weak acid. Now let's see what is strong acid. But before that, some of the students might get it difficult to understand degree of ionization. अगर समझ में आया तो फिर ठीक है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे एंड होपफुली इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे. ठीक है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए अभी बता दिया. बट एसिड्स में जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक है इस सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सो इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है. So now let's study what is an strong acid. So those acids which dissociates completely or which ionizes completely in their aqueous solution. In aqueous solution, वैसे एसिड्स को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड. समझ गए? एग्जाम्पल्स के तौर पे ले लो, HCl, H2SO4, these are the examples of strong acid. ये ध्यान रखना है. HCl, H2SO4, HNO3. Now let us see what is weak acid. So those acids which dissociates or ionizes partially, in their aqueous solution. So डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन समझ गए. स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, कंप्लीटली टूट जाए. डिसोसिएट का मतलब, लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ HCl. अभी देखा था, HCl इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन टूट जाता है H+ एक्वस आयन में एंड Cl माइनस एक्वस आयन्स में. H2SO4 का देख लेते हैं. H2SO4 क्या है, ये किस में डिसइंटीग्रेट करेगा, किस में टूटेगा, ये हो जाएगा 2H+, ये भी एक्वस, प्लस SO4 माइनस एक्वस. क्लियर है? HNO3 देख लेते हैं. HNO3 एक्वस dissociates into H+ aqueous and NO3 minus aqueous. क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? वीक एसिड का एग्जांपल देखते हैं. वीक एसिड क्या हो सकता है, एसिटिक एसिड CH3COOH, it's a weak acid. Other one H2CO3, कार्बोनिक एसिड, एंड सल्फ्यूरस एसिड भी एक वीक एसिड होता है, H2SO3, it's a weak acid. Now एक जनरल स्टेटमेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, और या फिर एज ए नोट आप लिख लीजिए, that you should write a note that all the mineral acids are generally strong acid. क्या लिखोगे? all the mineral acids are strong acid, but there is an exception. क्या है? H2CO3 and H2SO3.
ये क्या होते हैं, ये मिनरल एसिड्स हैं बट वीक एसिड है। सो यहाँ पे लिख लीजिए एक्सेप्ट H2SO3 एंड H2CO3, इन दोनों के अलावा जितने भी मिनरल एसिड्स हैं, ये देखो ये तीनों मिनरल एसिड्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग कहने का क्या मतलब है कि ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। इट मीन्स दे विल प्रोड्यूस मच मोर अमाउंट ऑफ H प्लस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है? एंड व्हाट अबाउट द वीक एसिड? नोट में आगे क्या लिखना है अबाउट द वीक एसिड? अबाउट वीक एसिड यू शुड राइट दैट ऑल द ऑर्गेनिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। ठीक है, चलिए ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। यहाँ तक क्लियर है? ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल दे दिए, CH3COOH, इसके अलावा और लिख लो एक HCOOH, मेथनोइक एसिड, इट्स ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ सिंस यू हैव स्टडीड अबाउट द डिसोसिएशन पार्ट, लेट मी टेल यू one more concept which is important. Let's see the example of HCl, aqueous. Now HCl जो है डिसोसिएट होता है H प्लस एंड Cl माइनस में। नाउ अब ये H प्लस जो आयन है ये अपना अकेला घूमता नहीं रहता है, ये H प्लस आयन बाकी के H2O मॉलिक्यूल में से कंबाइन होकर के H3O प्लस ये एक नया आयन बनाता है, हाइड्रोनियम बोलते हैं इसे, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, दिस फेनोमेना विल हैपन इन ऑल द केसेस, ऑल द डिसोसिएशन ऑफ एसिड केसेस। ओके, सो जितने भी H प्लस आयन्स होते हैं वो H2O वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके एक नया आयन बनाते हैं जिसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। एंड दैट्स व्हाई या तो आप H3O प्लस लिखेंगे या फिर यहाँ पर आप H प्लस एक्वस लिखेंगे। अगर आप सिर्फ H प्लस लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। सो ये ध्यान रखना है, या तो आप H प्लस एक्वस लिखेंगे या तो आप H3O प्लस लिखेंगे। क्लियर है? सिमिलरली विल बी द केस विथ H2SO4, इस केस में भी यहाँ पर 2H प्लस एक्वस, HNO3 प्लस एक्वस, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग एवरीवेयर एक्वस। अभी तक आपने नोटिस किया होगा। क्लियर है ना? So we have seen that how strong acid dissociates. Now let's see an example of weak acid, that how a weak acid dissociates. एक weak acid का भी example देख लेते हैं। जैसे कि weak acid क्या था? CH3COOH, CH3COOH, acetic acid, CH3COOH in the aqueous form. aqueous का मतलब क्या होता है ये आपको बताया था मैंने, that the solution of acid with water, वाटर यहाँ पे एज ए सॉल्वेंट है, सो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे एक्वस। क्लियर है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। नाउ एसिटिक एसिड ब्रेक इनटू दैट CH3COO माइनस एक्वस एंड H प्लस एक्वस। क्लियर है? नाउ अब जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहा था, देन आई शोड ओनली दिस एरो, सिंगल एरो, बट इन केस ऑफ पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, डबल एरो, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एरो, दिस एरो शोज द पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। सो आपको एग्जाम में ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, ऑफ द dissociation of weak acid H2CO3. Carbonic acids dissociate into 2H plus aqueous plus CO3 2 minus aqueous। क्लियर है? सो स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएंगे, इसीलिए एक सिंगल एरो दिया है। वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट करेंगे, इसीलिए एक डबल एरो दिया है, वन शोइंग फॉरवर्ड एज वेल एज अदर शोइंग बैकवर्ड डायरेक्शन एज वेल। सो आई होप टिल नाउ ये क्लियर हो गया है आपको। वन मोर थिंग यू शुड नोट हियर इज दैट इन दिस टॉपिक, ये जो डिवीजन ऑफ एसिड्स है इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, it is based on degree of ionization and not on the concentration basis। लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ। आप इसे एज ए नोट लिख सकते हैं,
एज ए नोट लिख लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, उनके टूटने की क्षमता पर ये डिवाइड होते हैं, एंड नॉट ऑन द डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर ये डिवाइड नहीं होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। Now students, we have seen two criteria of division of acid, types of acid. One is occurrence, the other one criteria is the degree of ionization. Now the third criteria will be concentration. ठीक है, on the basis of concentration acids can be divided as, on the basis of concentration acids can be divided as concentrated and the other one will be dilute. The first will be concentrated and the other will be dilute acid. Dilute acid. I hope this is clear. Now let us try to understand what is the meaning of concentrated here. Okay, so concentrated acids are those which contain minimum possible amount of water in it, which contain minimum possible amount of वाटर इन इट, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में पानी होता है इन एसिड्स में, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। एंड dilute acids are those which contain relatively more amount of water, which contain relatively more amount of water in it. Now let's see the method of how to dilute any concentrated acid. ये आपको पढ़ना है, किसी भी concentrated acid को dilute कैसे बनाएंगे। So students, write down the next topic, diluting any acid. Just imagine करिए, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ the process and you can write it in your own words. That let's suppose कि आप लैब में गए and the task is to make a dilute acid from a concentrated acid. ठीक है, यही प्रोसेस जो है डाइल्यूट एसिड का बनना फ्रॉम एनी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, यही डाइल्यूटिंग कहलाता है। सो आप लैब में गए एंड यू हैव बीन गिवन ए बीकर विथ वाटर एंड an acid bottle. Okay, let's suppose this is the container which is having the acid, concentrated acid, ठीक है, इसमें concentrated strong acid है, let's say this is H2SO4 and इसमें क्या है अपना water which is kept in the beaker. Now हमें डाइल्यूट करना है। डाइल्यूटिंग का आसान भाषा में क्या मतलब होता है कि हमें एसिड और पानी को मिक्स करना है। मिक्स करने के दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है, दैट यू पुट सम एसिड इनटू द वाटर, ठीक है, तो यहाँ पर एसिड सॉल्यूशन बन जाएगा। दूसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है, यू पुट सम वाटर इनटू द एसिड कंटेनर, ठीक है, दो पॉसिबल केस हैं। दिस इज द सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट। सो लॉजिकली सोच के बताओ दैट व्हाट शुड यू डू टू मेक ए डाइल्यूट एसिड फ्रॉम ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब आपको बता दिया अभी। सो अब आपको बताना है, वीडियो को पॉज करो और जस्ट थिंक, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू द करेक्ट मेथड दैट यू शुड पुट ड्रॉप बाय ड्रॉप द एसिड इनटू द वाटर। ओके, आपको ये ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है धीरे धीरे करके, एंड अलोंग विद दिस यू हैव टू स्टर द सॉल्यूशन, आपको इसे घुमाते भी रहना है, ठीक है। लैब में आपको एक स्टरर दिया जाएगा, इट्स एन बेसिकली लेड रॉड। स्टरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब आप चीनी पानी का घोल बनाते होगे तो चम्मच से उस घोल को घुमाते हैं ताकि चीनी जल्दी से मिल जाए सॉल्यूशन में एंड मीठा पानी पीने को मिले, समझ रहे हो। सो इस प्रोसेस के दौरान भी हमें क्या करना है, धीरे धीरे एसिड को पानी में डालना है, एंड अलोंग विद दिस वी हैव टू स्टर द सॉल्यूशन विद द यूज ऑफ स्टरर।
ठीक है, सॉल्यूशन को स्टर भी करना है। एंड इट्स ए बेसिकली हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाईली exothermic process, and so you have to use this safety equipments while doing this experiment। बहुत ही ध्यान से करना होगा, नहीं तो ये हजार्डस भी हो सकता है। नाउ द सेकेंड केस क्या था कि हमने पानी डाल दिया एसिड में, इसका भी आउटकम देख लेते हैं। दैट इन स्मॉल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप गलती से एसिड में पानी डाल देते हैं तो ये बहुत ही विगरसली रिएक्ट करेगा एंड हो सकता है कि एसिड बाहर छलक जाए, कंटेनर या तो ब्लास्ट कर जाएगा या फिर एसिड बाहर छलक जाए एंड इट विल बी वेरी डेंजरस। अगर गलती से एसिड आपकी स्किन पे गिर गया तो यहाँ पर जल सकता है। Acids are very corrosive, especially the strong acids. Strong concentrated acids are very corrosive, so you have to be careful and do not ever put water into acid. Just put acid into water for the dilution purpose. So I hope आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। So as a summary, क्या क्या पढ़ा है आज हमने? That we have started with the types of acid. We have studied organic and inorganic. ठीक है? Second, we have studied about strong and weak acids. We have studied about degree of ionization. Third, हमने क्या पढ़ा? Concentrated and dilute acid. Fourth, the method of dilution of any concentrated acid. ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं आई हैं तो फिर आप नीचे कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड you can also join our telegram channel and telegram group so that you can interact with us, and there you can also post your doubts and we will be happy to solve your doubts। and in the next lecture we will start the properties of acid। okay, so see you soon in the next lecture। thank you, good luck।